Finished reading of the text of the Iliad and its analysis written by the Greek poet Homer. And now, today, we are going to discuss one of the very important questions from the Iliad, which is about the involvement of gods. As I have been telling you since we started Greek literature, that the Greek gods are very playful and very nasty when it comes to their relationship with humans, as they constantly meddle with their affairs. They are constantly involved in their lives for good and bad. Sometimes they result in good things, and sometimes they result in bad things. Sometimes they are jealous of them, sometimes they are happy with them, they bless them, sometimes they are angry with them, so they uh, make them suffer with their wrath. So the involvement of gods have been multifaceted, especially in involvement of Greek gods have been multifaceted in Greek literature. And if we come to the Iliad, the Iliad is an epic poem, which is a very lengthy narrative poem, and it narrates the tale of the final year tale of the Greek war, which was fought between the Achaeans, or the Greek warriors, and the Trojans to retrieve Helen. And so we know the history, we know the background. There is one side, there is Greek army, there are many Greek leaders, there is an inner conflict between them, which we have focused in the book 1. Today we are going to discuss that, how do we find the involvement of gods in the Iliad, with particular reference to book 1, that we have seen the involvement of god Apollo, Hera, Athena, Thetis in the book 1. And what kind of involvement is this? Are Greek gods just aloof observer? I mean, are they just sitting at Mount Olympus and just looking at what is happening in Troy? आर दे अलूफ ऑब्जर्वर? इसका मतलब ये है कि क्या वो बस चुपचाप जो है देख रहे हैं कि इंसान आपस में क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग? बट दिस proposition is wrong, because Greek gods are not aloof observers. They are not just watching, they are involved, they are playing with humans. जैसे इंसान खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, like they are fighting the war, these gods are also fighting the war. So, in Homer's The Iliad is a story of the ending of the 10-year war between the Greek forces and the Trojans. What is happening in the Iliad is that the Greek forces are trying to invade in the city of Troy, and then in the book 1, the entire focus is on the conflict between Achilles and Agamemnon, which we have discussed in detail in yesterday's lecture. Iliad is just not the story in which Helen is being retrieved. Helen को वापस लाने की स्टोरी नहीं है. स्टोरी है डेफिनेटली, बट उससे बढ़ के भी देर आर मोर themes in it, as I have said, the involvement of gods. Iliad is the story of Greek gods and goddesses of Mount Olympus, and Greek believed that the gods frequently interfered in human affairs, so the gods make frequent appearances supporting both sides of the war. We see that there are two sides of the war. On one side there is Greek army, the other side there is Trojan army, and some gods are favoring Trojans, some gods are favoring Greeks. जस्ट लाइक वी कैन सी दैट अपोलो ने बुक 1 में जो है, जो प्लेग भेजा है, जो आसमान से बरसते हुए तीरों की जो बारिश भेजी है, उससे एकियंस, उससे जो ग्रीक सोल्जर्स हैं वो मर रहे हैं, तो ग्रीक्स को जो है लॉस हो रहा है. इसका मतलब है अपोलो क्लियरली साइड ले रहा है ट्रोजन्स की, वो चाहता है ट्रोजन जीत जाएं. लेकिन आपको पता है हीरा जो है, हीरा द वाइफ ऑफ जूस, द वाइट व आर्म्ड हीरा, वो जो है इकाइलिस के दिमाग में ख्याल लाती है कि उसको जो है एक असम्बली बुलानी चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए, ताकि वो डिस्कस कर सकें वो अपोलो को किस तरह से मना लें. तो दैट मीन्स हीरा जो है वो जो है ग्रीक आर्मी को सपोर्ट कर रही है. इसी तरह से अथीना, जब इकाइलिस बहुत गुस्से में होता है तो वो आती है उसको समझाने के लिए, स्ट्रेटजी समझाने के लिए. दैट मीन्स वो भी बड़े जो है अच्छे तरीके से ग्रीक्स का साथ दे रही है. बाय द एंड ऑफ बुक 1 में पता चलता है थेटिस, जो कि सी गॉडेस है, शी इज़ मदर ऑफ इकाइलिस, वो जो है वो जूस के पास जाने वाली है अपने बेटे की फरियाद लेके कि जो है इन जो ग्रीक आर्मी है इनको इसी समंदर के किनारे इनका बेड़ा गर्क कर दो, इनकी कश्तियाँ डूब जाएं, इनके सारे लोग मर जाएं, ताकि एगमेम्नॉन को सबक मिले. तो इसका मतलब है थेटिस जो है वो चाहती है कि ट्रोजन्स जीतें. तो गॉड्स जो है उन्हें क्लियरली अपनी जो है ना साइड्स चूज़ की हुई हैं. ये जो स्टेटमेंट आपके सामने है, व्हाट रोल डू द गॉड्स प्ले इन बुक 1? आर दे अलूफ ऑब्जर्वर्स, फेयर इंटरमीडियरीज?
or meddling nuisances. सो दे आर डेफिनेटली मेडलिंग. दे मेडलिंग का मतलब होता है वो बड़े दिलो जान से लगे हुए हैं, उन्होंने जो है ना टांग अड़ाई हुई है पर ये ग्रीक्स और ट्रोजन के फड्डे में, एंड दे आर इक्वली फाइटिंग द वॉर. सो दे आर इक्वली इन्वॉल्व. इसका मतलब है ना सिर्फ वो चुपचाप तमाशाई भी नहीं है, दे आर नॉट अलूफ ऑब्जर्वर्स, दे आर नॉट फेयर इंटरमीडियरीज, बट दे आर मेडलिंग विद द बिजनेस ऑफ ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स. उनका जो वॉर चल रही है, दे आर इक्वली फाइटिंग द वॉर. और हम इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू अपोलो का क्या रोल रहा है बुक 1 में, एथीना, गॉडेस एथीना का और गॉडेस थेटिस का. ठीक है. सो we know that gods, they frequently interfered in human affairs, and when they interfere they are always picking the side, especially when gods are involved in the war, in this war of Troy. Gods are taking sides either with the Trojan army or either with the Greek army. One of the most important gods is Apollo. He is the god of prophecy and music, and he dislikes the Greek army in the book 1. In the book 1, we can see that he has sent a plague upon them, and then later in the Iliad, he also enables brother of Paris, who is Hector, to kill one of the important Greek warrior who was Patroclus. And which is one of the important turning point in the entire narrative of the Iliad. And so why is Apollo taking sides of the Trojans? So why let's discuss that. Let's discuss the role of Apollo in book 1. Apollo, he plays a very pivotal role, central role in the book 1, which kicks off the conflict between the Agamemnon and the Achilles. As we see in the book 1, the conflict is internal. It's between the Greek army. We see different Greek leaders fighting with each other. We see Calchas, we see Agamemnon, we see Menelaus, we see Achilles, we see the other old, aged, experienced Greek warriors fighting with each other because of the plague sent by Apollo. So we see that we can clearly see that if Apollo hadn't sent that plague, if Apollo was neutral, if Apollo was not angry with them, if Apollo was not unfair, अगर Apollo जो है उन पे प्लेग ना भेजता और वो एरोस बरसती हुई तीर जो है आसमान से वो ना भेजता, तो ये सब कुछ ना होता. So that means in book 1, जहाँ पे ये इंसान, ये mortal human beings, Agamemnon, Achilles and others are playing important role, gods are also playing very central role. So one of the central role in book 1 is of Apollo. So these Greek soldiers, they are camped outside the Troy for 9 years, and then they are fighting wars with the Trojans. सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट या जो प्रोमिनेंट डेवलपमेंट ये होती है बुक 1 में, दैट Agamemnon, who is one of the important Greek leader, and Achilles, he is the best warrior. They are claiming young women as the spoils of the war prizes पे जो है इनके दरमियान जो है झगड़ा हो जाता है. जो वॉर प्राइज एगेमेमनॉन का है, क्राइसिस, शी इज़ अ डॉटर ऑफ द प्रीस्ट ऑफ अपोलो, और ज़ाहिर बात है वो प्रीस्ट जब अपनी बेटी को लेने आता है और एगेमेमनॉन रिफ्यूज़ कर देता है, देन दैट क्राइसिस, दैट प्रीस्ट आस्क अपोलो फॉर रिट्रीब्यूशन एंड आस्क हिम टू सेंड प्लेग ऑन देम. और फिर अपोलो ऑब्वियसली अपने प्रीस्ट की बात जो है सुनता है और जो है वो उनके ऊपर जो है प्लेग भेज देता है. इस प्लेग के जब काफ़ी दिन 9 रात के लिए जब प्लेग चल रहा होता है, बहुत सारा नुकसान जब ग्रीक्स उठा चुके होते हैं, तो फिर अकाइलिस जो है एक मीटिंग बुलाता है जिसमें जो है वो एगेमेमनॉन को फोर्स करते हैं कि क्राइसिस जो उसका वॉर प्राइज़ है वो रिटर्न कर देते उसके फादर को, ताकि जो है अपोलो को जो है हम लोग जो है
उसकी ब्लेसिंग्स ले सकें, उसकी जो नाराज़गी है उसे दूर कर सकें और उसके लिए जो है काफ़ी सेक्रीफाइसेस, एनिमल सेक्रीफाइस कर सकें, ठीक है। लेकिन ये जो रिटर्निंग ऑफ द वॉर प्राइज़ है, दिस लीड्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकाइलीज़ एंड एगमेम्नॉन। एक बहुत बड़ा जो है इनके दरमियान एक फसाद, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाता है, जहाँ पे एगमेम्नॉन थिंग्स के दोनों पे एक दूसरे के बहुत एंग्री एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है, बहुत जो है तू मैं होती है। एगमेम्नॉन सेज लॉट्स ऑफ बैड थिंग्स टू इकाइलीज़ एगमेम्नॉन को बहुत बुरी बुरी चीज़ें कहता है, ठीक है। और यहाँ तक सिचुएशन चली जाती है कि इकाइलीज़ जो है उन सबको छोड़ के वो अलग चला जाता है, एंड ही सेज दैट आई विल टेक बैक, मैं आर्मी में है, तुम लोगों के साथ लड़ूंगा ही नहीं, मैं भी पूरी आर्मी को लेकर वापस चला जाऊँगा। और जाने से जाता तो नहीं है डेफिनेटली, जब वो नाराज़ हो चुका होता है तो अपनी मदर थेटिस जो कि गॉडेस ऑफ सी है उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो, हालांकि वो ग्रीक्स के साथ आया है लड़ने के लिए, वो रिक्वेस्ट करता है कि ग्रीक्स को हार हो जाए और ट्रोजन्स की, जो ट्रॉय के लोग हैं, उनकी फतह हो जाए, ठीक है। सो ऑल दिस, वाई दिस हैपन, बिकॉज ऑफ द सेंट्रल रोल ऑफ द अपोलो। अगर अपोलो प्लेग ही ना भेजता, अपोलो ऐसा कुछ करता ही ना, तो इन पे जो है ये जो इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट है, द फाइट, द ट्रबल बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एगमेम्नॉन एंड इकाइलीज़, वो बड़ा वो जो है उसमें वो सामने ना आता। इसके अलावा बुक 15 और 16 जो है इलियड की, उसमें भी जो है अपोलो का काफ़ी रोल है, लेकिन जो है हमारे सिलेबस में बुक 15-16 इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि हेक्टर, ही इज़ ब्रदर ऑफ पेरिस, वो ट्रोजन जो है ट्रोजन वॉरियर है, और पेट्रोक्लस जो है इकाइलीस का जो है राइट हैंड है, उसका बहुत अच्छा दोस्त है, वॉरियर है। इनके दरमियान जो है एक फ़ाइट सीक्वेंस होता है इस इलियड में, जिसमें जो है अपोलो जो है हेक्टर को सपोर्ट करता है जो ट्रोजन है, और पेट्रोक्लस की डेथ हो जाती है उसके नतीजे में। पेट्रोक्लस की डेथ की वजह से ग्रीक आर्मी को बहुत जो है नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। तो अगेन जो है अपोलो ही इज़ टेकिंग साइड ऑफ ट्रोजन्स। वो फेयर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल है, वो बैलेंस मेंटेन किया हुआ। नो, इट इज़ वेरी क्लियर दैट अपोलो हैज़ टेकन साइड विद द ट्रोजन्स एंड ही वांट्स ग्रीक आर्मी टू लूज़, ठीक है। देन वी कम टू the next, ये हो गया the role of Apollo. Then let's discuss the role of Athena. She is the goddess of wisdom, and we haven't read any hymn on goddess Athena, but we have learned a lot on I learned a lot about Athena, that she is very strong headed, she is very good with strategization, and हमने जो है अथीना के बारे में पढ़ा है इन एफ्रोडाइटी की जो पोम थी उसमें भी मैंने पढ़ा था, एफ्रोडाइटी इज़ जेलस ऑफ हर। सो वी हैव लर्नड लिटल थिंग्स अबाउट अथीना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि अथीना का जो contribution है, हर contribution in Homer, what it has been. So the goddess Athena is a powerful figure, and she also interferes in the Trojan War because to get back at Aphrodite. We all know that Aphrodite जो है she's on the side of Trojans, because Aphrodite, Paris जो है वो Aphrodite को चुनता है as the most fairest of all, सबसे खूबसूरत goddess among Athena, Artemis and Aphrodite. तो ऑलरेडी इन गॉडेसेस के दरमियान एक टसल चल रही है। तो एफ्रोडाइटी ही जो है पेरिस को ये ताकत देती है कि वो हेलन को जो है अब्डक्ट करके अपने साथ ले आए। अब्डक्ट को बोलते हैं किडनैप करके ले आए। सो जो है एथीना इसी वजह से जो है शी टेक साइड ऑफ, आपको ये देखें बैकग्राउंड स्टोरी है कि एथीना जो है वाई शी इज़ टेकिंग साइड्स ऑफ ग्रीक आर्मी। वो ग्रीक्स का साथ क्यों दे रही है? बिकॉज शी हैज़ अ थिंग, शी हैज़ अ टसल, शी हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विद एफ्रोडाइटी। बिकॉज जूस ने जो पेरिस को चॉइस दी थी कि हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो उसमें आर्टेमिस, अथीना और एफ्रोडाइटी थी। सो पेरिस डिड नॉट चूज़ अथीना, ही चूज़ एफ्रोडाइटी। उसने एफ्रोडाइटी को चुना, अथीना को नहीं चुना। तो यहाँ से तो उनका कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गया। और जब हमें पता है कि एफ्रोडाइटी जो है ट्रोजन को सपोर्ट कर रही है, एंड दैट इज़ वाई अथीना इज़ सपोर्टिंग द ग्रीक आर्मी। एंड she throughout the epic poem Iliad, Athena has been showing her love toward the Greek army many times by protecting them, and so let's learn कि Athena की जो है क्या involvement रही है। Athena is the Greek goddess of wisdom, and she also plays a major role in Homer's The Iliad, because she works to protect the Greek warriors fighting against the Trojans. Athena is described as a powerful warrior and a watchful woman. The main reason Athena protects the Greek soldiers in the Trojan War is to avenge the wrong
against them caused by the Paris. Why she is doing it? Why she is on the sides of the Greeks? Because she wants to avenge the wrong done by the Paris. जो पेरिस ने जो उनके साथ बुरा किया है, पहले ये कि पेरिस ने अथीना को चूज़ नहीं किया एज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, ब्यूटीफुल ऑफ ऑल, ही हैज़ चोजन एफ्रोडाइटी. पहला रॉन्ग एक पर्सनल लेवल पे है, उसका पर्सनल ग्रज है अथीना का टुवर्ड ट्रोजन या पेरिस की तरफ, क्योंकि उसने उसको नहीं चुना. दूसरा रॉन्ग ये है कि हेलेन को जब उसने अबडक्ट किया है, किडनैप किया है, उसकी वजह से पूरी ग्रीक आर्मी जंग लड़ने के लिए आई हुई है. तो दैट मीन्स शी इज़ टेकिंग साइड ऑफ द ग्रीक आर्मी टू रिवेंज का मतलब है रिवेंज लेना, बदला लेने के लिए ऑफ द रॉन्ग विच वॉज डन बाय पेरिस टुवर्ड द ग्रीक्स. ठीक है. और पेरिस कौन है? वी ऑल नो दैट ही इज़ द प्रिंस हु स्टोल हेलेन अवे फ्रॉम मिनोलस द हस्बैंड. सो अथीना जो है, वी कम टू नो अबाउट अथीना इन द फर्स्ट 100 लाइन्स. हमें पता है कि वो जो अथीना और एकाइलीज़ हैं, सॉरी, जब एगेमेमनॉन और एकाइलीज़ की बहुत ज़्यादा जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रही होती है, एंड एगेमेमनॉन कॉल्स एकाइलीज़ के तुम में जो है कोई स्पेशल कैपेबिलिटी नहीं है. इट इज़ बिकॉज गॉड्स हैव गिफ्टेड यू दिस स्किल. तुम्हें जो जंगजू बनने की जो स्किल है गॉड्स ने दी है, इसकी वजह से यू आर सच ब्रेव सोल्जर, अदरवाइज देयर इज़ नथिंग एक्सेप्शनल इन यू. इसकी वजह से जो है इकाइलीज इज़ हर्ट, और वो जो है इतना ज़्यादा हर्ट और गुस्से में है दैट ही टेक्स आउट हिज स्वॉर्ड एंड ही वांट्स टू किल एगेमेमनॉन. तलवार निकाल के उसे मारना चाहता है. एंड दैट टाइम आवर गॉडेस एथीना, द गॉडेस ऑफ विजडम एंड वॉर स्ट्रेटेजाइजेशन, शी अपीयर्स. सो होमर ने जो है उन लाइन्स में एथीना को डिस्क्राइब किया है दैट एथीना इज़ अ fiery with fire that flashed from her eyes. She is as brave as she is beautiful. Homer compares her to a brilliant meteor flying through the sky when she goes to help the Greek soldiers. So Athena is supporting the Greeks, and from the very beginning of the Iliad, Athena is on the side of the Greek soldiers. Why? Because she has love for Menelaus, because his wife Helen has been abducted by Paris, and दूसरी रीज़न मैंने जैसे बताई कि वो एफ्रोडाइटी के साथ भी जो पर्सनल एक रीज़न है, उसकी वजह से पर्सनल रीज़न क्या है, क्योंकि पेरिस ने एफ्रोडाइटी को चूज़ किया और अथीना को नहीं. और आपको पता है कि एफ्रोडाइटी जो है अपने जो चार्म्स हैं, अपना जो पावर्स है, जो अपनी स्वीट लस्टफुल डिज़ायर्स हैं, उसने बड़ी कोशिश की है कि अथीना को जो है वो अपने जाल में फंसा ले. इन हिम टू एफ्रोडाइटी हमने पढ़ा था कि जो है 3 गॉडेसेस हैं जिन पे एफ्रोडाइटी की पावर्स नहीं चलती, उनमें से एक अथीना है. तो ऑलरेडी इन दोनों के दरमियान जेलसी का एलिमेंट मौजूद है. तो अगर एफ्रोडाइटी ट्रोजन्स को, ट्रॉय के लोगों को सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली अथीना सपोर्ट करेगी ग्रीक्स को. ठीक है. और अथीना जो है ग्रीक्स की हेल्प करने के लिए शी ऑफन कम्स डाउन टू द बैटल फील्ड एंड गिव्स द मैन हेल्प और करेज टू कीप ऑन फाइटिंग. वो बहुत बार हीरा के कहने पे, जो कि हीरा इज़ ऑल्सो द गॉडेस वाइफ ऑफ ज़ूस, उसे कहने पे बहुत बार ज़मीन पे आती है जहाँ पे ये इंसान मॉर्टल मैन जो है जंग लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए. एज वी नो अथीना इज़ जस्ट नॉट द गॉडेस ऑफ विजडम तो है, अक्लमंदी की गॉडेस तो है, इसके साथ साथ वो गॉडेस ऑफ वॉर स्ट्रैटेजीज़ भी है कि जंग में किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ यूज की जाए, किस तरह से प्लानिंग की जाए जीत हासिल करने के लिए. एंड अच्छा जी, एंड वी ऑल्सो सी दैट अकाइलीज़ जो है बहुत ज़्यादा जब गुस्से में है, तो उस वक्त भी जो है अथीना जो है उसके पास आती है टू स्टॉप हिम, टू मेक हिम काम डाउन, मेक हिम अंडरस्टैंड द सिचुएशन. ठीक है. तो अथीना जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है टुवर्ड द ग्रीक सोल्जर्स, एंड शी हैज़ हेल्प देम थ्रू आउट. सो अथीना जो है शी हैज़ बीन गिविंग करेज टू द ग्रीक सोल्जर्स टू मेक देम कीप फाइटिंग, एंड थ्रू आउट द वॉर, ये जो 10 साल लंबी वॉर थी, शी स्टिक्स बाय देम एज दे फाइट द वॉर. तो वो उनके साथ थ्रू आउट रही है, उनकी सपोर्ट बन के. सो अथीना इज़ क्लियरली ऑन द साइड ऑफ ग्रीक्स, जहाँ पे हमने पढ़ा कि अपोलो जो है वो ग्रीक्स ट्रोजन्स की साइड पे है. एंड वी नाउ कम टू नो दैट अथीना जो है वो द गॉडेस ऑफ विजडम, शी इज़ ऑन द साइड ऑफ
the Greek soldiers. And then let's talk about Thetis. What is the role of Thetis? Thetis जो है बुक वन के एंड में अपेयर होती है व्हेन इकाइलीज इज़ हार्ट ब्रोकन. वो बहुत अपसेट है क्योंकि उसकी जो वॉर प्राइस ब्राइसिस है वो हमारा जो एंग्री किंग है एगमेम्नॉन वो उसको ज़बरदस्ती लेके जा रहा है क्योंकि इसे अगर मेरा जो है प्राइस जाएगा तो मैं जो है किसी और का प्राइस भी नहीं रहने दूँगा. सो थेटिस इज़ अ सी goddess. She is the wife of the warrior and she is the divine mother of Achilles. Achilles जो है वो एक मॉर्टल आदमी और उसकी का बेटा है, लेकिन उसकी जो माँ है वो एक गॉडेस है, थेटिस. ठीक है. And as we know that gods have frequently mated with human beings, with mortals, and they have produced mortal children. So Achilles जो है mortal children है of the goddess Thetis. अच्छा, थेटिस का भी जो है काफ़ी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी जो है सेंट्रल पिविटल रोल है इन बुक वन. बल्कि आगे जाके भी ग्रीक आर्मी जितनी भी जो है प्रॉब्लम फेस करेगी उनकी रीज़न भी थेटिस रहेगी, क्योंकि जो है एकाइलीस थेटिस से रिक्वेस्ट करता है कि वो जूस के पास जाए एंड मेक हिम गेट एंग्री विद द ग्रीक्स एंड मेक हिम लेट हिम ट्रोजन विन द वॉर. सो थेटिस जो है वो हमें इन आखिरी लाइंस में इन बुक वन शी टेल्स Achilles दैट हिज लाइफ इज़ शॉर्ट लिव्ड एंड देन शी सेज कि मैं जो है तुम्हारी खातिर जो है आई विल गो टू जूस एंड आई विल रिक्वेस्ट हिम दैट I will request him that he should make the Greek army फेल एट द वेरी बैंक ऑफ द रिवर. वो जिस दरिया जिस के समंदर के किनारे में मौजूद हैं कि उनकी शिप्स वहीं पे सिंक कर जाएं और उनकी आर्मी हार जाए और ट्रोजन्स की जो है फतह हो जाए. वाई? बिकॉज हर सन द सन Achilles रिक्वेस्ट और Achilles क्यों Achilles हर्ट है क्योंकि एगमेम्नॉन के दरमियान काफ़ी सारा आर्ग्यूमेंट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है और एगमेम्नॉन जो है उसका वार प्राइज़ लेके जा रहा है. जो जब वॉर स्टार्ट होती है तो वो क्लियरली ग्रीक्स की साइड पे होती है. ग्रीक में इतने इंपॉर्टेंट बड़े बड़े वॉरियर्स हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से वॉर जीत भी रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि Achilles जो है अपनी मदर थेटिस से रिक्वेस्ट करता है कि ग्रीक्स को हरा दिया जाए, तो थेटिस जो है जूस को रिक्वेस्ट करती है और जूस ऑन द रिक्वेस्ट एंड अपील ऑफ थेटिस टर्न्स द बैटल अगेंस्ट द ग्रीक्स की तरफ जो है Achilles को ऑनर करने के लिए ग्रीक्स के ख़िलाफ़ कर देता है बैटल को और ग्रीक्स जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं. थ्रू आउट द इलियड जूस जो है वो ओवरसीयर है. ही इज़ लुकिंग ओवर द एंटायर बैटल एज वी नो दैट ही इज़ द किंग गॉड एंड एवरीथिंग, बट we cannot even say that Zeus has been fair with the Trojans and with Greek soldiers, because on the request of Thetis he has punished Greek soldiers. So we can clearly see that the Greek gods, they have been meddling with the affairs of human beings. वो शुरू से लेके आखिर तक they have been from book 1 to the book 18 they have been meddling with the life of the mortal human beings. So we can clearly infer that in Iliad the involvement of God is to the extreme level. Involvement of gods in the affairs of men is evidently present, and they are not aloof observer, they are not neutral beings, they are meddling, they are interfering, they are changing the course of entire war. वो अपनी पावर्स के थ्रू जो है और अपनी टसल्स के थ्रू और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू वॉर को जो है उसका बिल्कुल रुख बदल रहे हैं. कोई किसी को फेवर कर रहा है, कोई किसी पे नुकसान डाल रहा है, किसी पे कोई जो है अजाब आ रहा है, एंड इन दिस वे दे आर चेंजिंग द होल नैरेटिव ऑफ द वॉर. लुकिंग एट अगर हम बुक 1 की बात करें, बाय लुकिंग एट ओनली फर्स्ट 200 लाइन्स ऑफ द पोम वी फाइंड 3 मेजर डिवाइन इंटरवेंशंस. वी सी अपोलो सेंडिंग प्लेग ऑन द ग्रीक आर्मी, वी सी हीरा making Achilles think of calling a meeting, and then we see Athena who is restraining the Achilles to prevent him from killing Agamemnon. And then we also see that how Thetis' role in book 1 as well. So divine interventions, they are very common throughout the poem, not only in the book 1 but in all the books.
most of the gods in the poem are partisans, they are equally taking part. हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ वो देख रहे हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं, खामोश देख रहे हैं. They are not even खामोश देख रहे, they are not even neutral, they are partisans, they are taking part, they are equally involved in the war. So most of the gods in the poem are partisan toward one side or other. या तो वो ग्रीक्स की साइड पे हैं, फिर वो ट्रोजन की साइड पे हैं. And we have discussed that which god is on the which side. There are moments in the Iliad where the gods feel some of the pain that men and women do, but these are fleeting and lack anything like depth of feeling of their mortal counterparts. So in Iliad, pain and suffering are supposed to be the preserve of mankind rather than the gods. The most common descriptors for the gods in the Iliad include deathless, blessed and everlasting. मतलब gods के लिए जितनी भी adjective use हुए हैं वो इस तरह के words हैं, immortal, deathless, blessed, everlasting. लेकिन men के लिए जो word use हुए हैं wretched, blaze, black rage, burning with fire, और इस किस्म के जो हैं उनके लिए जो है obviously because they are mortal so they can die, तो उनके लिए इस तरह के adjectives यूज़ किए गए हैं. और जो है these human beings they reflect on human suffering. इंसानों के थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से ये लोग सफ़र करते हैं, because mortal human beings they suffer. लेकिन gods हैं they live लाइफ फ्री फ्रॉम केयर बिकॉज दे आर एवर लिविंग. गॉड्स जो हैं वो हमेशा रहने वाले हैं, एवर लास्टिंग हैं, सो दे लिव अ लाइफ फ्री फ्रॉम केयर. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं दे सफ़र्ड अ लॉट. सो व्हेन gods got involved and took part in this war, they did not have anything to lose, because in the end whoever won, either Trojans won or either the Greeks won, gods they didn't care because उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, because they are everlasting, they live forever. But because of their involvement, Greeks और Trojans को जो नुकसान उठाना पड़ा उसकी वजह से इन ह्यूमन सफरिंग बहुत ज़्यादा हुई. These human beings suffered. For example, जब अपोलो ने जो है पेट्रोकुलस जो काइलिस का जो है कंपेनियन है उसकी डेथ मौत की रीज़न बनता है, तो काइलिस इज़ टोटली लॉस्ट, और काइलिस की अपनी भी डेथ हो जाती है बाय द एंड ऑफ इलियड. सो एंड देन देर आर लॉट्स ऑफ पीपल डाइंग. इवन पेरिस की डेथ हो जाती है, लॉट्स ऑफ ग्रीक वॉरियर्स की डेथ हो जाती है, हेक्टर की भी डेथ होती है. सो देर इज़ लॉट्स हैपनिंग. ह्यूमन बींग्स आर कॉन्स्टेंटली सफरिंग एंड वी कैन नॉट से दैट द एंड ऑफ द वॉर ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम. वो सेम नहीं है, बिकॉज वॉर एंड सफरिंग दे क्रिएट लॉट्स ऑफ ट्रामा एंड प्रॉब्लम्स एंड for human beings, but we cannot say the same for gods. Gods they remain carefree, they are everlasting, forever, immortal. So the involvement of gods, it has not only changed the course of entire war. Iliad में जो war जो है ट्रोजन वॉर उसकी भी शक्ल बड़ी चेंज हुई है खुद गॉड्स की इन्वॉल्वमेंट से, और ह्यूमन सफरिंग पे भी बड़ा इम्पैक्ट है गॉड्स का. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. आई होप दैट you know how to opt for this question, how to answer this question. First of all, you have to just elaborate that how gods what have been their role in the Iliad. उनका क्या क्या रोल रहा है, वो हम ये नहीं आपका बताओगे कि जो है वो अलूफ ऑब्जर्वर नहीं है, वो न्यूट्रल भी नहीं है, दे आर टोटली इन्वॉल्व. ग्रीक लिटरेचर में वी हैव सीन कि दे हाउ मच दे आर इन्वॉल्व. एंड देन यू विल ट्रिकल डाउन टू दीज 3 गॉड्स. आपने अपोलो के बारे में बताना है, एथीना के बारे में बताना है, थेटिस के बारे में बताना है. यू कैन कोट फ्यू लाइन्स फ्रॉम द Iliad to make your answer more sound. I hope the entire lecture was helpful and you understood it well. If there is any question, you guys can ask in the comments box. Have a good day, everyone.